Good morning, students. Today we will be studying projectile motions. Projectile motion is one of the important topics of the motion in a plane or motion in two dimension. And projectile, what actually is a projectile? Anything which is thrown in air or which has flight is called projectile. For example, projectile, a cricket ball is a projectile when it is thrown by one player to the other player for him to catch. Okay, so any object thrown at angle or horizontally or even downwards, but at that moment the object is flying or it is in flight is called projectile. Okay, now let us understand some important terms of a projectile. Okay, let me draw the axis first so that we have our usual directions along with the sign. Okay, so suppose this is a x direction and y direction. Generally we consider anything going up as positive, and anything coming down as negative. So this is the positive y direction. Okay, in x again, if it is going towards right, we'll consider it as positive, and towards left, negative. Okay, and now this is in tune with our rectangular Cartesian system. So if an object is at origin, okay, at any instant of time it is at origin. Okay, so this at this point, what will be the value of x? Will be 0, and what will be the value of y? Will be 0, and that object is thrown. Okay, it is thrown now. Okay, what will be the path it will follow? It will follow, which we will derive in our equation in our further studies. It will follow a parabolic path. The path followed by the projectile in motion is called parabolic path. Parabola कैसा होता है? It will go up, curve out, and then come back to the ground. Okay, so it will go up, curve back to the ground. Okay, so this is the parabolic path. Okay, so it is going up. So here at this moment, its y is positive, it is going up, means the y is positive. At certain points, its velocity will become 0. Okay, but that is the vertical velocity. So suppose, first of all, we should understand what actually the projectile motions terms are. So this path followed by that object is called trajectory. A path followed by this object is called trajectory. Projectile क्या है? Object in flight, है ना? ऐसा फेंका हमने, तो this is projectile. This chalk is projectile. I am projecting it from here, so it is following this curvature path. This path is called trajectory of the projectile. Okay. Now when I have thrown it at certain angle, मैंने उसको एक angle में throw किया, suppose at certain angle, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. क्या बोलते हैं इसको? इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी, इट विल बी टेंजेंशियल टू दिस कर्व. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इट विल बी टेंजेंट टू दिस कर्व. ओके, सपोज मैं इसको बोलता हूँ u. इनिशियल जब मैं फेंक रहा हूँ तो उस समय जिस वेलोसिटी से मैं इसको फेंक रहा हूँ उसको बोला मैंने u. ओके, सो u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. जिस एंगल से मैंने फेंका, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब फेंका तो ये कुछ हाइट में गया, है ना. अब नाउ एवरी पॉइंट इट्स हाइट इज चेंजिंग, है ना. यहाँ पे हर एक पॉइंट में x एंड y वैल्यूज आर चेंजिंग. यहाँ x 0, y 0. थोड़े यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे x की एक वैल्यू हो गई x1, है ना, और इधर पे y की वैल्यू हो गई y1. थोड़ा और आगे गए तो ये हो गई
x की वैल्यू x2 एंड देखो y की वैल्यू y2. Now at certain point it will have a maximum value, है ना. इस फ्लाइट के पाथ में, ट्रेजेक्ट्री में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी मैक्सिमम होगी वैल्यू होगी. इसको हम बोलते हैं अगर मैं इसको दिखाऊं उससे तो ये होगा एच मैक्स, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उस ऑब्जेक्ट को एक टाइम लगा, उसको बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना. इसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना. इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में इसको टाइम लगा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना. उसको बोलते हैं TF. ठीक है. टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्रेजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट, okay. Now when I am throwing it, it is also covering certain distance, horizontal distance भी cover कर रहा है. देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये horizontal distance cover कर रहा है. तो इसको बोलते हैं रेंज. इसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. इसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके. सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, है ना, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रेजेक्टरी. ओके. And the angle in which the projectile is thrown is called the angle of projection. The velocity, the initial velocity is u, and the projectile when it reaches the maximum height from the ground it is called maximum height. Okay. And the total time taken for the projectile to come back to the ground or from wherever it is thrown. Okay. So it is called time of flight, and the total horizontal distance covered by the projectile is called range of प्रोजेक्टाइल. ओके. ये टर्म्स थोड़ा आप याद रखेंगे, इसके कुछ डेरिवेशंस हैं उसको हम देखेंगे. नाउ व्हाट आई विल शो यू इज देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, है ना. देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन. उसको थोड़ा समझते हैं. सपोज ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u. नाउ u can be resolved into the horizontal component and the vertical component. Okay. Suppose मैं यहाँ पे ही ये जो u vector है, it is a velocity is a vector, u vector है, इसको दो component में, एक horizontal component में और एक vertical component में resolve करूँगा. तो ये along the angle जो भी component आएगा इसको बोलेंगे u cos theta. Along the एंगल, हॉरिजॉन्टल से हमने एंगल नापा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो यहाँ से जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा ये होगा u cos थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वह है u sin थीटा. ओके. सब अब u इज द लॉन्च, u को हम क्या बोलेंगे? लॉन्चिंग वेलोसिटी. हम क्या बोलेंगे उसको? लॉन्चिंग वेलोसिटी. और ये इसने एक एंगल बनाया थीटा. नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैज़ टू मोशंस. अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो दो मोशन दिख रहे हैं मेरे को, और ये जो जिस एंगल में मैंने फेंका इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशंस, है ना. इन दोनों मोशन, एक हॉरिजॉन्टल में एक मोशन हो रहा है और एक वर्टिकल में मोशन हो रहा है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये वेलोसिटी बता रहा है, ये लॉन्चिंग वेलोसिटी. ओके. तो इसका मतलब क्या है कि ये अब अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल के पाथ को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में बांट देता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, है ना. इसके जो रिलेटेड मैथमेटिक्स हैं वो इजी हो जाएगा. आप एक चीज़ आप देखोगे, है ना, हमने इसको फेंका तो हमने एक इनिशियल वेलोसिटी इसको दे दी, लॉन्चिंग वेलोसिटी. उसके बाद क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्या उसको और कोई तेज़ी दे रहा है? हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि वी हैव टू इग्नोर द एयर ड्रैग, है ना, या रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर. हमको ये मान के चला कि भी वैक्यूम है, कुछ नहीं है,
एयर के कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा है, तब ये हमारे सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो वैलिड होंगे। तो अगर कोई एयर नहीं है और मैंने इसको फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई और फोर्स इसमें एक्ट नहीं कर रहा है। एक बार हमने तो थ्रो कर दिया, उसके बाद उसमें और कोई फोर्स लग नहीं रहा। अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो हमको एक चीज़ हमको याद रखना है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, है ना। हम क्या डालेंगे, इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो इनिशियल हो या वो फाइनल हो, वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा, वो यहाँ तक ड्रॉप होते तक भी u cos थीटा ही रहेगा। उसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये u cos थीटा ही ट्रैवल किया। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वही यहाँ पे भी रहेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर, कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, प्लीज कीप दिस इन माइंड, है ना, हमेशा। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी बात करें तो y एक्सिस, है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन y में हो रहा है क्या? यस, देयर इज एन एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एसेंशियली द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, है ना। अगर हम देखें ये प्रोजेक्टाइल मोशन को हम 2D मोशन ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, इट इज़ मोशन अंडर ग्रेविटी एंड इट फॉलोज द टू देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। द फर्स्ट, द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो अभी मैंने आपको बताया। द मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। सो मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड सेकेंड, द मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज अंडर ग्रेविटी। मोशन along the vertical direction is under gravity. Okay, अब ये ग्रेविटी का प्रूव करना है कैसे, अंडर ग्रेविटी। यहाँ पे उसमें एक फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज g। डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पे भी अगर बॉडी है तो उसमें एक फोर्स लग रहा है जिसको हम mg बोलते हैं, बाद में आप पता करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हर एक पॉइंट में ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड टुवर्ड जो नीचे की तरफ है, और जो नीचे की तरफ है उसको हम क्या लेंगे, माइनस। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन y एक्सिस, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इज -g। हर एक पॉइंट में ये नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है ना, ये हर एक पॉइंट में नीचे की तरफ लग रही है। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। इन दोनों ही प्रिंसिपल से ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोजेक्टाइल मोशन आगे बढ़ते जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ वो अपने मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, अगर मैक्सिमम हाइट में पहुँच गया यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा, यानी कि u sin थीटा यहाँ पे 0 हो जाएगी, है ना। नाउ थीटा ऑल्सो चेंजेस, जहाँ जहाँ ये थीटा है, यहाँ थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा और यहाँ पे एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर मेरे से इसका यहाँ पे इक्वेशन लिखना है वेलोसिटी का, अगर इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, u इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में क्या है, u cos थीटा आई कैप प्लस की जगह मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, माइनस या प्लस ही करते हैं, यहाँ पे नहीं, एक्सेलरेशन पे हम करेंगे माइनस। यहाँ पे
इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा जे कैप, है ना। सो u का इक्वेशन क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u का इक्वेशन हो गया u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। इसको मैंने रिजोल्व कर दिया। अब इससे मुझे क्या मिला, हमने अभी बताया कि भाई वेलोसिटी u x क्या है, u cos थीटा, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है, u cos थीटा, u y क्या है, u साइन थीटा, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन कर सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0 आई कैप, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी जे कैप। ओके, सो व्हेन वी हैव कंसिडर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन ओरिजिन 0 0 पे है ना, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ये इक्वेशन बनते हैं। तो इससे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos थीटा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस जी। ओके, तो अब किसी भी पॉइंट में, किसी भी टाइम एट ए टाइम t, उसका पोजीशन अगर मुझे बताना है ना, पोजीशन बताना है, सपोज हमने जो माना है ये 0 0 में है, तो उसका पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी, हम लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ मैं इसको बोलूँ कि इसको दोनों डायरेक्शन में करते हैं, पहले हम, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। ओके, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा x, ठीक है। अभी इनिशियल पोजीशन 0 है तो x नॉट पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u x t, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u x t प्लस हाफ इंटू 0 टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है इधर पे, 0 टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यू एक्स क्या है, u cos थीटा इंटू टी, यू एक्स क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी। तो ये x की वैल्यू होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम t। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये वी हैव कंसिडर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन में नहीं है और इट इज़ एट सर्टेन पॉइंट हियर, सपोज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू होगी x की, है ना, उसको हम बोलेंगे x नॉट, यानी इनिशियल पोजीशन को उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई। सपोज y चाहिए मुझे, फिर मैं यही लगा देता हूँ, y इज इक्वल टू u इंटू वाई टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, u y है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज पोजीशन ऑफ इन y डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इन y डायरेक्शन, ठीक है। ये x डायरेक्शन में पोजीशन, ये y डायरेक्शन में पोजीशन। x डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा टी, और y डायरेक्शन में u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब वेलोसिटी की बात कर लें। velocity in x direction at time t. So velocity at time t, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो जनरल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना।
तो यानी इसको मैं दोनों डायरेक्शन में अगर करूँ तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। इसको अगर दोनों कंपोनेंट में मैं ब्रेक कर दिया है ना, वेलोसिटी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी यू एक्स प्लस ए एक्स टी और वी वाई यू वाई प्लस ए वाई टी। अब इसको वी एक्स को देखते हैं। वी एक्स यू एक्स क्या हो गया, यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ज़ीरो, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है ना। दिस विल बी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शंस वेलोसिटी यानी यू कॉस थीटा। अब वी वाई क्या हो जाएगा, यानी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, यू वाई यानी यू साइन थीटा, यहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस जी इंटू टी। तो ये हो गया वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ओके, यानी यू साइन थीटा माइनस जी टी, ओके। अब हम जो उस टाइम पे हमने कुछ डिस्कस किया था, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके डेरिवेशन करते हैं। ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में ये 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन द डेरिवेशन, है ना, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 चीज़ें एकदम गौर करके बताई हैं कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हमने जो प्रोजेक्टाइल के मोशन को 2 डायरेक्शन में डिवाइड किया, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उस मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, वर्टिकल मोशन है, उसमें जो है एक्सेलरेशन होगा माइनस जी, है ना। जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट इज़ वाई ये चीज़ें अगर आपको क्लैरिटी है तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से बन जाएंगे, ओके ओके। सो लेट अस सी कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, ओके। तो हम अगर इसको कंसिडर करते हैं, हमने इस बॉल को हमने फेंका, ये ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो वहाँ ऊपर नहीं जाएगा, है, वहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। फेंका, ये बॉल का ये ट्रैजेक्टरी है, उसमें ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड देयर विल बी ए पॉइंट जहाँ पे वो ऊपर नहीं जाएगा, दैट मीन्स इट हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर यहाँ की इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगा क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी कम होते जा रही है। क्यों कम होते जा रही है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है उस बॉडी को टुवर्ड्स ग्राउंड। तो ये धीरे धीरे जैसे हमने यहाँ से फेंका तो ये बहुत तेज़ी से गया और जहाँ एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वर्टिकल वाली। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। एट द हाइएस्ट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड its vertical velocity, that means the velocity in y direction vy will be equal to 0, okay। तो अब यहाँ पे हम कुछ इक्वेशन लगा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले, अच्छा मैक्सिमम हाइट नहीं, हम पहले टाइम टू रीच दिस हाइट, है ना, व्हाट विल बी द टाइम टू रीच दिस हाइट, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं, है ना। अभी वी वाई हो गया 0, है ना, ये डिस्टेंस कितना है, एच मैक्स, है ना, वी वाई हो गया 0, ये डिस्टेंस है एच मैक्स। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, है ना, ठीक है। v यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन है u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन है ना. वी आर कंसिडरिंग कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन. ओके तो मैं यहाँ पे वी वाई यू वाई ए वाई सबको कंसिडर कर रहा हूँ. वी वाई एट द मैक्सिमम हाइट विल बी 0. यू वाई क्या है, u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है, माइनस जी इंटू टी. ओके अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मैं जब पहुँच रहा हूँ तो टाइम कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा जी टी, माइनस जी टी है उसको इस साइड लाऊंगा तो ये जी टी इज यू साइन थीटा. तो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी. ठीक है तो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हाफ डिस्टेंस, यहाँ तक पहुँचने में हाफ बाय सिमेट्री. अगर पूरा मुझे देखना है तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा u साइन थीटा अपॉन जी है ना, इतना टाइम लगा u साइन थीटा अपॉन जी. यहाँ से यहाँ पहुँचने में u साइन थीटा अपॉन जी. तो यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, अगेन u साइन थीटा अपॉन जी. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन जी. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको आप याद रखेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी. ओके सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी. ओके अब मैक्सिमम हाइट कर लेते हैं हम, उसको लगाएंगे हम यहाँ पे. फिर अगेन वर्टिकल मोशन कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक वाला फॉर्मूला अगेन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s की जगह मैं लिख देता हूँ h इन y डायरेक्शन है ना, देन यू टी, u क्या है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. ठीक है तो एच वाई यानी यहाँ पे मैं बोलूँगा एच मैक्स, यू वाई क्या है u साइन थीटा इंटू टी है ना, देन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तब जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचने में t की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में t की वैल्यू है u साइन थीटा अपॉन जी. तो मैं उसको रख देता हूँ, इसके वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ है ना. तो ये हो गया u साइन थीटा अपॉन इंटू ये t की वैल्यू क्या है u साइन थीटा अपॉन जी. यहाँ पे t की वैल्यू रखा u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा अपॉन जी. ओके माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर. ठीक है दोनों टर्म आ गए, u साइन थीटा इंटू टी, टी क्या है u साइन थीटा अपॉन जी. ठीक है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी. पहला टर्म क्या होगा u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा क्या होगा u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ है ना, ये g से कैंसिल हुआ लेकिन ये स्क्वायर है तो एक g नीचे बच गया और ये क्या है u साइन थीटा होल स्क्वायर. तो u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ
यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी, बचा क्या हाफ यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, एंड दिस इज एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपने निकाल लिए। अब हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी अब मैं कौन सा मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक बार हम हॉरिजॉन्टल मोशन की तरफ चलते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम दिखाते हैं आर्च से। ओके, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, है ना, तो यू एक्स है यू कॉस थीटा। ठीक है, अब एट टाइम टी एफ, यानी टाइम टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जितने टाइम पे ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सिंपल फॉर्मूला से आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा r इज इक्वल टू स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या वेलोसिटी इन x मल्टीप्लाइड बाय द टोटल टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों ये इतना सिंपल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगाते हो तो क्या होगा, v, अच्छा v नहीं सॉरी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हो तो a तो है ही नहीं, तो वो कट गया, तो क्या बचा u t, है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में a वाला गया तो क्या बचा u t, यानी वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2u sin थीटा अपॉन g। तो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, या फिर मैं ऐसे लिखूं u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos theta on g. Now from your trigonometric identity, 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta, है ना, ये आपको याद रखना है। 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta, तो रेंज is equal to u square sin 2 theta on g। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, r हॉरिजॉन्टल रेंज, tf टाइम ऑफ फ्लाइट, h मैक्स हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। और कुछ चीज़ें जो हमको निकालना होता है कई बार, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। आपको सिंपल यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। किसी भी पॉइंट में आप एंगल निकाल सकते हो इससे, x डायरेक्शन के y डायरेक्शन की वेलोसिटी डिवाइड बाय x डायरेक्शंस वेलोसिटी। नाउ एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट दिस ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। हाउ डू वी नो इट इज़ पैराबोलिक, तो उसको भी हम पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक कैसे है। ओके, इट्स ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, है ना, इस शेप में कैसे है। दो पैराबोला इज अ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स in class 11th I think, but for those students who will not study this parabola, it is actually a quadratic equation in x and y, है ना। it is a quadratic equation in x and y। अगर y है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल तो x होगा स्क्वायर, x स्क्वायर। तो जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जनरली ऐसा होता है। अगर x नहीं भी हो तब भी अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, सॉरी, एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है ना। जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए अच्छी बात, और जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको ये याद रखना है कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, अब हम विल ट्राई टू प्रूव आउट कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसको फॉलो कर रहा है, ऐसे ही फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं, है ना। हमने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। ठीक है, ये x हो गया, और y क्या हो गया? u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ और इसमें पुट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ। t की वैल्यू क्या है यहाँ पे? t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, है ना। t क्या है? x अपॉन यू कॉस थीटा। यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स, यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या हो गया? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ओके, तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये u और ये u कैंसल, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा x। ठीक है, माइनस g बाय टू, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू, पहले एक्स स्क्वायर वाले को देखते हैं। ये जो इतना है ना, यानी कि माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस टेन थीटा इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर करिए, है ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, है ना। तो मैं क्या ले सकता हूँ कि भाई मैं a की वैल्यू क्या ले लिया? a इज इक्वल टू माइनस जी टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू मैंने लिया टेन थीटा। तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, and this is the equation of parabola. Hence this object actually is following a parabolic path, है ना। This object is following a parabolic path, hence proved. तो आपको थ्योरी में इतना ही आएगा, ये प्रूफ आएंगे, और ये प्रूव करने के लिए आएगा कि भाई ये बताइए कि ये पैराबोलिक पाथ कैसे फॉलो करता है। ओके, सो व्हाट विल डू नाउ इज विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। लेकिन एक तरीके, दूसरे तरीके का भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है, या किसी एंगल में प्रोजेक्शन होता है। तो हम क्विकली उसको क्या देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसको मैंने यहाँ से ना फेंक के सिर्फ यहाँ से फेंक दिया, और वो भी सीधे फेंक दिया, तब भी ये पैराबोलिक पाथ, हाफ पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, यानी कि ये। ठीक है, तब
इसको कैसा मोशन बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। सो नाउ हमने इस ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेंका, तो ये वेलोसिटी से फेंका, ये है u, ठीक है। अब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं। इस पॉइंट ऑफ जहाँ जिस हाइट से मैं फेंक रहा हूँ, सपोज ये हाइट है h, यहाँ से अगर मैं फेंक रहा हूँ तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? Vy इज इक्वल टू 0, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एक्चुअली में वो वेलोसिटी है, तो Uy इज इक्वल टू 0 और Ux इज इक्वल टू u, जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया, ओके। अब थोड़ी देर बाद वो सपोज ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट में इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? ये u ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे एक डाउनवर्ड्स वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन द एंगल, ओके। ये एंगल यहाँ पे कैसे पता चलेगा? ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, एक टेंजेंट, एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा। सपोज इट इज़ मेकिंग एन एंगल बीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, बट यहाँ पे ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये नेगेटिव एंगल है ना, इसको बीटा है। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? u साइन बीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? u साइन बीटा, है ना। और u cos बीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू u, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होगा नहीं टिल दिस पॉइंट वो चेंज होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे इट विल बी u, और यहाँ पे अगर ये ऐसा बना रहा है, एक एंगल पे गिर रहा है, सपोज ये बीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? u साइन बीटा। ये हो जाएगा इसका वर्टिकल वेलोसिटी। जहाँ पे किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रहा है, इट विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी u, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी u साइन बीटा, ओके। इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपसे कोई भी सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अब एसेंशियल चीज़ें मैंने लिख दी, Uy इज इक्वल टू 0, Ux इज इक्वल टू u, सॉरी 0 नहीं होगा, Vy क्या होगा? Vy क्या होगा, है ना, v, ये तो u इनिशियल वेलोसिटी है 0, और ये Vy क्या होगा? Vx इज इक्वल टू, है ना, Vx यानी फाइनल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? u प्लस 80 बोलेंगे तो u क्या है? u प्लस 80 अगेन 0। लेकिन Vy क्या होगा? Vy विल बी 0 और प्लस 80 की जगह पे हो गया माइनस gt, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट टाइम t, वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट t, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा? u, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस gt, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस gt, ओके। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी हैव टू कंसिडर द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वी हैव टू कंसिडर द वर्टिकल मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो एट say t is equal to 0, at time is equal to 0, this object was at this height, है ना, ये कितने हाइट पे था? h हाइट में, बट आफ्टर थ्रोइंग इट पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इसकी हाइट क्या हो रहा है? कम होते जा रही है, यानी इसका मोशन किधर हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। और ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना मोशन हो चुका होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में? ये h मोशन हो चुका होगा। तो मैं क्या लिखूँगा इसको? मोशन किधर हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस h। मैं अब इसमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ। यू टी यानी यू एक्स सॉरी यू वाई क्या है? 0 है, यू वाई 0 है इनटू टाइम, जितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ आने में वही तो निकालना है।
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन जी तो माइनस है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन है। तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये माइनस तो माइनस कट गया और ये 2 इधर चला गया, तो ये हो गया 2h, जी इधर आ गया तो नीचे इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t मुझे चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस हॉरिजॉन्टल मोशन इज projectile with horizontal velocity only is t is equal to under root 2h upon g। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मुझे निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है अगर मुझे, यानी ये कितना है, तो अगेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, u ही है। तो रेंज अगर मुझे निकालना है इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u और t कितना है, ये निकल आया अंडर रूट 2h अपॉन g। तो ये रेंज हो गया u इंटू 2h अपॉन g। ओके, एंगल बीटा निकालना है, बीटा इज बी tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई क्या है, माइनस जी टी है ना, और x क्या है, वी एक्स क्या है, u। तो इधर लिख देता हूँ, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस जी टी अपॉन u। अब माइनस जी टी का मतलब क्या होता है, या ये tan इनवर्स नेगेटिव में है, इसका मतलब है इसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे डायरेक्शन में होगा, है ना। तो मैं इसको ये भी निकाल सकता हूँ tan इनवर्स जी टी अपॉन यू, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी डाउनवर्ड्स, है ना, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से नीचे होगा। यानी एंगल ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। जब थ्रो करते हैं तो ये एंगल कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे है, इसलिए वो नेगेटिव साइन है, माइनस जी टी अपॉन यू। ओके, सो दिस वेयर सर्टेन फॉर्मूलाज जिसका डेरिवेशन होना था। लेट अस नाउ स्टार्ट विथ सर्टेन प्रॉब्लम्स जिसको आराम से हम समझें और अप्लाई करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज your NCERT example 4.9, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meters per second in the direction 30 degrees above the horizontal. Calculate A, the maximum height, B, the time taken by the ball to return to the same level, and C, the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. Okay, let's draw a simple diagram. Okay, a cricket ball was thrown at an angle of 30 डिग्रीज। ओके, ये 30 डिग्री पे बॉल को थ्रो किए, सो इट फॉलोड अ पाथ लाइक दिस। ओके, सो दिस थीटा, व्हाट वी हैव, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। देन इट इज ऑल्सो ट्रेवलिंग, द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 28 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, 28 meters per second. What do we need to find out? A में क्या लिखा है कि the maximum height. Okay, ये चाहिए मुझे h max. Second क्या बोलता है, the ball to time taken by the ball to return to the same level. यहाँ से फेंका, इसी लेवल पे आना है, तो हमको चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। और थर्ड क्या बोलता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स। ये थ्रोवर है, यहाँ पे ये आया, बॉल रिटर्न आया, तो दिस वी हैव टू फाइंड, दिस इज रेंज। तो रेंज चाहिए, तो एच मैक्स
है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो u साइन थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। u कितना है 28 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। आप देखो यहाँ पे कोई वैल्यू तो दिया नहीं है, आप उसको 10 भी लग सकता हो, 10 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 मीटर्स, है ना, ये आ जाएगा 10 मीटर्स, ओके। तो एच मैक्स यानी आप फेंका तो सबसे ऊपर इस वर्टिकल डायरेक्शन में सबसे ऊपर कहाँ तक गया, 10 मीटर्स तक गया, ओके। सेकंड बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आप फिर लिख लीजिए 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 अपॉन 10। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2.9 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 2.9 सेकेंड्स, ओके। देन रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी 28 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60 अपॉन 10 मान के चल लें, तो ये साइन 60 हो गया है, तो 28 स्क्वायर इंटू √3/2 अपॉन 10, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 69 मीटर, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल 4.8 from your book. A hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meters per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. Okay. Now, hiker. What is the meaning of hiker? To go into hike means पहाड़ चढ़ना, है ना। हाइकर कौन है, जो पहाड़ चढ़ने वाले लोग होते हैं, जिनको हॉबी होती है हाइक करने की, तो हाइकर है वो, ठीक है। क्लिफ क्या है, क्लिफ इज अगेन अ स्मॉल माउंटेन या चोटी, क्लिफ, ठीक है। तो द हाइकर स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, सपोज ये क्लिफ है, ठीक है। तो हाइकर कहाँ पे खड़ा हुआ है, एज ऑफ द क्लिफ, ओके, यहाँ पे खड़ा हुआ है। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ, इट्स 490 मीटर अबव द ग्राउंड, 490 मीटर अबव ग्राउंड। और यहाँ से वो हाइकर क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली उन्होंने एक पत्थर फेंका, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या थी 15 मीटर्स पर सेकेंड। उन्होंने पत्थर फेंका विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। सो यहाँ से फेंका, पत्थर नीचे आई, गिर गई यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे गिर गई, ओके। तो अब क्या बोल रहे हैं कि हमको निकालना क्या है, फर्स्ट टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, हमको निकालना है टाइम टेकन टू रीच द बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। सेकंड बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब ये हिट करेगी स्टोन तो इसकी वेलोसिटी क्या है ना, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है। तो सपोज ये ऐसा हिट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मैं बोल देता हूँ Vx, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको मैं बोलूँगा Vy। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वेलोसिटी। चलिए, एट दिस पॉइंट लेट अस सी, एट दिस पॉइंट हियर द टॉप
ना 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका, दिस इज u। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इट्स इन द सेम डायरेक्शन, तो ux इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, तो uy इज इक्वल टू 0। हाइट कितना है 490 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम का जो इक्वेशन है, अच्छा g को ले लेते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो लेट्स नाउ कंसिडर द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर द मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि y डायरेक्शन में मूवमेंट कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो उसको मैं क्या लिखूँगा -y, है ना। फिर इसका जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 इंटू t। हम यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे s डिस्टेंस कितना हो गया -490 प्लस u y है 0 इंटू t माइनस हाफ 9.8 t स्क्वायर, यानी कि अब y क्या है 490 और ये हो गया माइनस 4.9 t स्क्वायर। ओके, 9.8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t स्क्वायर इज इक्वल टू 490 ऑन 4.9 100, तो t क्या हो गया 10 सेकेंड्स। तो फर्स्ट आंसर निकल गया, कितने सेकंड में नीचे आएगा 10 सेकंड में। ओके ओके, सेकंड पार्ट सेज व्हाट विल बी द स्पीड, है ना। यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे है ना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो 15 मीटर पर सेकंड से ऐसा फेंका था, तो यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग बोलते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। एक्सेलरेशन भी मालूम है, टाइम भी मालूम है। एक्सेलरेशन 9.8, टाइम 10 सेकेंड। हमको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लेना है y डायरेक्शन में, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस at। vy पता नहीं, uy 0, a है -9.8 और t कितना है 10 सेकेंड्स। तो vy इज इक्वल टू -98 मीटर पर सेकेंड। -98 का मतलब क्या होता है, -98 का मतलब क्या होता है, इस मोशन इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये देखिए नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ही है, तो वी वाई इज माइनस। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन लिखूँ तो ये कितना हो गया 98, ये है 15, ये नीचे के डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कितना है 15 आई कैप, वाई डायरेक्शन में कितना है -98 जे कैप। तो ये तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी इन इसका मॉड्यूलस कितना हो गया, मॉड्यूलस इसका हो गया √15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इट विल बी राउंड अबाउट 99.1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज v रिजल्टेंट, v रिजल्टेंट कितना है 99.1 मीटर्स पर सेकेंड। सो इफ यू आर क्लियर इन द लॉजिक्स तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आराम से बन जाएंगे। ओके, लेट्स डू वन फाइनल क्वेश्चन।
Now let us do this question. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How high above the ground can the cricketer throw the same ball? Okay. So the question given is there is a cricketer who can throw a ball to a maximum range of 100 मीटर. ओके, यानी इसमें R दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, R 100 मीटर. ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर अब वो ऐसे ना फेंके, सीधे ऐसे उछाल दे उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, तो ये बॉल कितना ऊपर जाएगा, है ना. यानी इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसने ऐसे फेंका तो ये 100 मीटर दूर जाके गिरा यहाँ से. अब उसी बॉल को वो उसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकता है तो कितने हाइट में जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ओके, तो मैक्सिमम रेंज, है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. r मैक्स, ये तो r है ना, लेकिन यहाँ पे दिया है कि r मैक्स यानी मैक्सिमम रेंज. ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, यानी ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, है ना, जब ये जो साइन 2 थीटा है ये उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेंज जो है मैक्सिमम हो जाएगा. अब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है या क्या हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1. दैट मीन्स 2 थीटा, ये जो एंगल है, अब साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री में, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो एक चीज़ इसको आप हमेशा याद रखेंगे, किसी भी चीज़ को अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्रीज में हो, है ना, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा जब उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो, 45 डिग्री. तो उस प्रोजेक्टाइल सबसे ज़्यादा दूर कब गिरेगा, जब उसको 45 डिग्री के एंगल में हमने ऐसे फेंका. ओके, तो अगर आर मैक्स क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये लगा यहाँ पे वैल्यू डाल दिया तो आर मैक्स होगा u स्क्वायर अपॉन जी. ओके, u स्क्वायर अपॉन जी, है ना. और मुझे आर मैक्स दिया हुआ है 100 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन, मैं जी को 10 ले लेता हूँ, है ना, 9.8 भी ले सकते हैं, मैं 10 ले लेता हूँ. तो u स्क्वायर कितना हो गया, 1000. u स्क्वायर कितना हो गया, 1000. ठीक है, u स्क्वायर हो गया 1000. अब इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, u नहीं निकालते, u स्क्वायर 1000. अब इसको क्या पूछा है कि भाई अगर इसी वेलोसिटी से मैं इसको ऊपर उछालता हूँ, है ना, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो मैं उसको ले लेता हूँ h, है ना. तो ये इसी वेलोसिटी से हमने ऊपर उछाला. यहाँ पे मैं क्या इक्वेशन लगा सकता हूँ, है ना, अंडर ग्रेविटी मैं ये लगा सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना. तो v स्क्वायर सबसे ऊपर, अगर मैं जब फेंका तो सबसे ऊपर पॉइंट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैंने इसे बाहर ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ सबसे टॉप में जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. ओके, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, 1000. हाँ, अब इसमें एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स, तो ये -2g और हमको निकालना क्या है, h. तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 2gh इज इक्वल टू 1000. g हमने 10 लिया था, तो h इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय
2 इंटू 10, 10 से 10 ये हो गया 50 मीटर्स, है ना। तो यानी इसको उसी जगह पे हमने उछाल दिया तो कितने हाइट में जाएगा ये, इट विल गो अप टू 50 मीटर्स, है ना। अगर उसको 45 डिग्री के एंगल में हमने प्रोजेक्ट किया तो कितने डिस्टेंस गया वहाँ से, 100 मीटर्स, है ना। और इसको सीधे उसी वेलोसिटी से ऊपर उछाल दिया तो कितना हुआ, कितने ऊपर गया वो, 50 मीटर्स। सो होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स एंड उस असाइनमेंट को करके आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।